LT گریڈ اور GIC لیکچرر کے سلیبس کے مطابق اردو کا کمپلیٹ کریش کورس چل رہا ہے، جس میں ہم نے 70 کلاس آپ لوگوں کو دستیاب کرا دی ہے۔ آج کی کلاس نمبر 71 میں قاضی عبدالستار کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان کا افسانہ رزو باجی آپ کے سلیبس میں شامل ہے، اس لیے قاضی عبدالستار آپ کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ ان سے سوال آ سکتا ہے۔ ہمیں سردی اور زکام ہوا جس کی وجہ سے آواز پھنس پھنس کے جائے گی، تو اسے آپ اگنور کریے گا۔ چلیے، قاضی عبدالستار کب پیدا ہوئے تھے؟ 9 فروری 1933 عیسوی کو ضلع سیتاپور کے ایک گاؤں مچھریٹا میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ گھر پہ ان کو چھبن کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ان کے والد کا نام قاضی عبدالعلی تھا اور ننھے میاں کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ان کی والدہ کا نام عالمہ خاتون تھا۔ ہائی اسکول انہوں نے 1948 میں اور انٹرمیڈیٹ 1950 میں راجہ رگھویر دیال انٹر کالج سے پاس کیا۔ 1952 میں لکھنؤ یونیورسٹی سے BA کیا اور 1954 میں لکھنؤ یونیورسٹی سے ہی انہوں نے MA کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے انہوں نے PhD کی۔ ان کے نگراں کون تھے؟ ان کے سپروائزر پروفیسر رشید احمد صدیقی تھے، اور ان کا جو ٹاپک تھا وہ تھا اردو شاعری میں قنوتیت۔ تو اردو شاعری میں قنوتیت کے عنوان سے انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ کب؟ 1957 عیسوی میں۔ انہوں نے اپنے ادبی زندگی کا آغاز باقاعدہ طور سے شاعری سے کیا۔ 1947 میں انہوں نے شاعری شروع کی اور اپنا تخلص صاحبہ اختیار کیا تھا، لیکن جلد ہی انہوں نے شاعری ترک کر دی، کیونکہ مشاعروں میں جاتے تھے تو ان کے استاد وہیں پہ ٹوک دیا کرتے تھے اصلاح املا وغیرہ کی، جس کی وجہ سے بدظن ہو گئے۔ بعض لوگوں نے اور بھی کئی وجوہات بتائیں۔ بہرحال انہوں نے جلد ہی شاعری ترک کر دی اور پھر فکشن نگاری کی طرف آئے۔ افسانوں کی بات کریں تو ان کا پہلا افسانہ اندھا کے نام سے لکھنؤ کے ایک رسالے میں شائع ہوا تھا 1946 عیسوی میں۔ تو قاضی عبدالستار کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ اندھا ہے۔ قاضی عبدالستار کا پہلا افسانوی مجموعہ پیتل کا گھنٹا ہے۔ ٹھیک ہے، پیتل کا گھنٹا، یہ امپورٹنٹ ہے، اکثر پوچھا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قاضی عبدالستار کا پہلا ناول کون سا ہے؟ شکست کی آواز قاضی عبدالستار کا پہلا ناول ہے، جو کہ 1954 میں شائع ہوا تھا۔ اسی ناول کو ہندی میں پہلا اور آخری خط کے نام سے 1962 میں الہ آباد سے بھی شائع کرایا گیا۔ قاضی عبدالستار کے سماجی ناولوں میں شب گزیدہ، مجو بھیا، بادل، غبارِ شب، حضرت جان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ سب ان کے سماجی ناول ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے 2 ناول ہیں، تاجم سلطان اور آخری کہانی، جن کا شمار رومانوی اور سوانحی دونوں زمروں میں ہوتا ہے۔ تو ان کے سماجی ناولوں میں شب گزیدہ، مجو بھیا، بادل، غبارِ شب، حضرت جان، تاجم، اور ان کے جو سوانحی اور رومانی ناول میں تاجم سلطان اور آخری کہانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ناول آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ شب گزیدہ 1960 میں شائع ہوا، امپورٹنٹ ہے۔ مجو بھیا 1963 میں، بادل 1965 میں، گزارِ شب، غبارِ شب 1966 میں، حضرت جان 1990 میں شائع ہوا۔ ان کا مشہور تاریخی ناول ہے صلاح الدین ایوبی، 1964 میں شائع ہوا، اور دارا شکوہ 1967 میں شائع ہوا، اور خالد بن ولید 1995 میں شائع ہوا۔ تو یہ سب ان کے ناول ہیں۔ ٹھیک ہے، ناولوں کو پھر سے دیکھ لو۔ شب گزیدہ، مجو بھیا، بادل، غبارِ شب، حضرت جان، تاجم سلطان، آخری کہانی، صلاح الدین ایوبی، دارا شکوہ اور خالد بن ولید۔ ان کے اہم افسانوں کی بات کریں تو پیتل کا گھنٹا موسٹ امپورٹنٹ ہے، مالکن روپا لالا امام بخش، وراثت اور رزو باجی، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، GIC لیکچرر کے سلیبس میں شامل ہے۔
इसके अलावा परछाइयाँ, नाज़ो वापसी, दिवाली, ठाकुर द्वारा, शामली, एक कहानी, मीरास, नवमी सिंह, उसके बाद इनका खाका, कदम आदम, मशाल, मजरी, धुंधले आईने, गरम लहू में गलता, साया, सोच, मॉडल टाउन, पहली मौत, जंगल, मशीन, एक दिन, दाग, तहरीक, किताबें, आड़े तिरछे आईने, आंखें, नया कानून। ये अहम है। देखो नया कानून के नाम से एक और अफसाना है, किसका है ये आप लोगों को बताना है। मंगू उसका मरकज़ी किरदार है। ठीक है, तो वो किसका अफसाना है कमेंट में आप बताएंगे। ठीक है, सात सलाम, भूले बिसरे, ये भी इनका इम्पोर्टेंट है। तो इनके इम्पोर्टेंट जो अफसाने हैं, पीतल का घंटा, रज्जूबाजी, परछाइयाँ और नया कानून, भूले बिसरे, ये सब इनके अहम अफसाने हैं। अब आते हैं इनकी तनकीदी किताबों पे। तो इनकी पहली तनकीदी किताब है उर्दू शायरी में क़ुनूतियत। ये इनका PhD का मकाला भी था। 1957 में इसको मुकम्मल किया गया, 1963 में शाये हुआ। दूसरी इनकी तनकीदी किताब है जमालियात और हिंदुस्तानी जमालियात, 1973 में शाये हुई। सलाहुद्दीन अयूबी इनका एक नावल था। इस पर इनको गालिब अवार्ड मिला था 1973 ईस्वी में। तो पूछा जाए कि गालिब अवार्ड जो काजी अब्दुल सत्तार को मिला किस नावल पर मिला, तो सलाहुद्दीन अयूबी पर मिला। 1974 में इनको पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा एजाज़ मीर, यूपी एकेडमी अवार्ड, आलमी फिक्शन अवार्ड, कौमी उर्दू अवार्ड, महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अवार्ड, ज्ञानेश्वर अवार्ड, निशान सर सैयद, सद्भावना कमेटी सर सैयद अवार्ड और बहादुर शाह जफर अवार्ड, आलमी उर्दू अवार्ड, मध्य प्रदेश की जानिब से इकबाल सम्मान, यूनिवर्सिटी और टीचर्स उर्दू टीचर्स अवार्ड, ये सब इनको अवार्ड्स मिले। जो अहम है, गालिब अवार्ड 1973 में मिला, एजाज़ मीर 1977 में मिला और पद्मश्री 1974 में मिला। अब आते हैं सवालात पे। काजी अब्दुल सत्तार किस सन में पैदा हुए? 1933 ईस्वी में पैदा हुए। ठीक है, घर का नाम क्या था? तो घर में ये छब्बन के नाम से जाने जाते थे। वालिद का नाम क्या था? काजी अब्दुल अली था। नन्हे मियाँ इनके उर्फियत थी वालिद साहब की। तो ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। हाई स्कूल की तालीम कब मुकम्मल की थी? तो 1948 में हाई स्कूल की, 1952 में इंटर किया था। BA और MA इन्होंने कहाँ से किया था? BA और MA इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया था और PhD AMU से किया था रशीद अहमद सिद्दीकी की निगरानी में। इनमें से कौन सा नावल काजी अब्दुल सत्तार का नहीं है? शब गुज़ीदा काजी अब्दुल सत्तार का है। खालिद बिन वलीद भी काजी अब्दुल सत्तार का है। दारा शिको भी है। लैला के खतूत और मजनू की डायरी काजी अब्दुल गफ्फार का है। तो फ़र्क देखो, काजी अब्दुल सत्तार के नावलों में दारा शिको, खालिद बिन वलीद और शब गुज़ीदा है, लेकिन लैला के खतूत और मजनू की डायरी ये दोनों तसानीफ़ काजी अब्दुल गफ्फार की है। ठीक है, काजी साहब के PhD के तहक़ीक़ी मकाले का मौजू क्या था? तो उर्दू शायरी में क़ुनूतियत, ये मौजू था काजी अब्दुल सत्तार के PhD का। अच्छा ये बताओ, उर्दू शायरी में क़ुनूतियत सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? तो मीर के यहाँ। और फ़ानी भी क़ुनूती शायर की हैसियत से जाने जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, काजी अब्दुल सत्तार ने किसकी निगरानी में PhD की डिग्री हासिल की थी? तो प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी की निगरानी में। काजी साहब ने शायरी में कौन सा तखल्लुस अख्तियार किया था? तो साहिबा इनका तखल्लुस था, लेकिन जल्दी इन्होंने शायरी तर्क कर दी थी। अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ इन्होंने शायरी से ही किया था। तो ऑप्शन भी दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 11, काजी साहब का पहला अफसाना कौन सा है? देखो, अंधा के नाम से इन्होंने लखनऊ के अग्रसाला में अपना पहला अफसाना शाये कराया था। इनका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा? सब गुज़ीदा नहीं होगा, क्योंकि ये तो इनका नावल है। पीतल का घंटा, ये इनका पहला अफसाना है। काजी साहब का पहला नावल शिकस्त की आवाज़, ये कब शाये हुआ था? सन 1900
1954 ईस्वी में, ऑप्शन भी दुरुस्त होगा। काजी साहब के पहले नावल शिकस्त की आवाज़ को हिंदी में किस नाम से शाये कराया गया? तो इलाहाबाद से पहला और आखिरी ख़त के उन्वान से 1962 में इसको शाये कराया गया था। काजी साहब का नावल सब गुज़ीदा कैसा नावल है? समाजी नावल है, ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। वैसे तो आम तौर से ये तारीख़ी नावल लिखने के लिए जाने जाते हैं। जैसे काजी अब्दुल सत्तार के मशहूर तारीख़ी नावलों में से कौन सा एक है? तो काजी अब्दुल सत्तार का मशहूर तारीख़ी नावल दारा शिकोह है। ठीक है, दारा शिकोह के अलावा सलाहुद्दीन अय्यूबी भी इनका नावल है और तारीख़ी नावल खालिद बिन वलीद भी है। वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि खालिद बिन वलीद काजी साहब का कैसा नावल है? तो ये तारीख़ी नावल है। इनमें से कौन सा काजी अब्दुल सत्तार का नहीं है? कौन सा नावल नहीं है? शिकस्त की आवाज़ इनका पहला नावल है। सलाहुद्दीन अय्यूबी भी काजी अब्दुल सत्तार का है। मज्जू भैया भी है। ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती ये अजीज़ अहमद का नावल है। ठीक है, काजी अब्दुल सत्तार का नहीं है। इनमें से काजी अब्दुल सत्तार का एक अफसाना कौन सा नहीं है? देखो, पीतल का घंटा काजी अब्दुल सत्तार का है, विरासत भी काजी अब्दुल सत्तार का, रज्जू बाजी भी काजी अब्दुल सत्तार का है, ज़र्री ताज ये अजीज़ अहमद का है। ठीक है, अजीज़ अहमद का ये अफसाना है। काजी साहब की पहली तनकीदी किताब उर्दू शायरी में कुनूतियत, ये इनका PhD मकाला भी था। कब शाये हुआ था? तो 1900 पहली बार कब मंजर आम पर आया था? तो 1963 या फिर 73। तो 1973 जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि गलत बताने से अच्छा है कि एक बार चेक ही कर लिया जाए। सन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हमको हो ही जाता है। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। उर्दू शायरी में कुनूतियत ये इनका PhD का मकाला है, जिसको 1957 में मुकम्मल कर लिया था और 1963 में ये पहली बार मंजर आम पर आया था। तो काजी अब्दुल सत्तार की जो पहली तनकीदी किताब है, ठीक है, 1963 में ये मंजर आम पर आई थी। ऑप्शन सी दुरुस्त है। काजी अब्दुल सत्तार को उर्दू फिक्सन का पहला गालिब अवार्ड किस नावल पर मिला? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी नावल पर मिला। काजी अब्दुल सत्तार को पद्मश्री से कब नवाजा गया? तो 1974 ईस्वी में। ठीक है, तो हमने काजी अब्दुल सत्तार से मुताल्लिक सभी अहम बातें बता दी। उम्मीद है कि ये क्लास छोटी लेकिन आप लोगों के लिए मुफीद और कारआमद होगी। इससे अगर इम्तिहान में सवाल है तो आप गलत मत करिएगा। आपके सिलेबस में जो शामिल अफसाना है रज्जू बाजी है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस अफसाने को गूगल पे जाके सर्च करिए, रिख्ता पे आपको मिल जाएगा। इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। मुमकिन है कि यहाँ से सवाल भी आप लोगों से पूछा जाए।